Hello students, today we are going to study the human eye. That means which is an organ of sight, can be called as the organ of vision. तो organ of sight or the organ of vision in case of the human beings, एक सबसे important evolutionary change हुआ है while evolving the primates, nothing but the first ranked mammals, as there is shifting of the lateral eyes to frontal eyes. Lateral eyes shift हो गए frontal से direction में, frontal side में, and both the eyes which are in a pair, they are fixed in the socket of the skull just below the frontal bone. forehead bone, frontal bone उसके नीचे इन सॉकेट्स में आईबॉल को फिक्स रखा गया, and ultimately these are supported by means of a cushion like fatty tissue, adipose tissue. So ultimately these adipose tissue, they are acting as a shock absorber also, and in this way both the frontal eyes, अब ये lateral eyes से frontal eyes जो shifting हुआ है, जिसकी वजह से हम या अदर फर्स्ट रैंक मैमल जिसको बोलते हैं, these can focus both the eyes on the same object. दोनों आईज एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट और हमारी बॉडी इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उस ऑब्जेक्ट का थिकनेस कितना है, डेप्थ कितनी है, इस सभी का पता लग सकता है. तो अल्टीमेटली जहां से ऐसा विजन जिसके द्वारा डिस्टेंस, थिकनेस and the depth along with the various color differentiation, that means our eyes, this can perceive the visible range of the light. It is from 390 nanometer wavelength up to the 760 nanometer wavelength. It is a actual visible spectrum like violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, from violet to red. They can differentiate all these 7 colors. तो जहां पर दोनों आईज एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, फ्रंटल लोकेशन पर हैं, बरीड है ऑर्बिट्स में या आई सॉकेट्स में, उनको प्रोटेक्ट किया गया है बाय मींस ऑफ ए दैट अल्टीमेटली रीचेस फोरहेड, अल्टीमेटली दैट फोरहेड बोन, ओके, फ्रंटल बोन उसके रीचेस जहां पर हेयरी आईब्रोज है, जिसके द्वारा डस्ट पार्टिकल को ट्रैप किया जाता है, विथ अ रैपिडली मूविंग eyelids which are ultimately terminate into the eyelashes, nothing but the hairs. So all these are the protective measures. And such eyes, when they can focus on a same object, we can ultimately, there is a clear cut judgment about the object and the body, that is a distance, depth, thickness, all these things. Such type of the vision is called as the binocular vision or stereoscopic vision or the three-dimensional vision. तो ऐसा ऑर्गन ऑफ साइट हमारा ऑर्गन ऑफ विजन, जहां पर हमको स्टडी करना है बाय यूजिंग नियर अबाउट 3 वीडियोस. इनिशियली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द वॉल एंड द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सच ह्यूमन आई. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सच वॉल ऑफ द अल्टीमेटली सच entire eye is a oval structure, and such oval structure which is nothing but a circular structure, 3/4 portion of the entire circular structure which is buried in the orbit, while the exposing part is only the 1/4. exposing part जो हम बाहर से देख सकते हैं, it is only 1/4 portion. Now here, so such entire human eye shows 3 different layers from external to internal side. Also provide with the biconvex lens, जिसके द्वारा रेस को, लाइट रेस को कलेक्ट किया जा सकता है, and ultimately they falls on the retina, that is nothing but the layer which is responsible for the visual perception and generate the impulse, that is can convert the radiant energy of the visible light into the nerve impulse.
ऐसे लेयर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉल ऑफ द आई। नाउ द एक्सटर्नल लेयर, आउटरमोस्ट लेयर, which is highly fibrous and toughest layer, सबसे आउटर लेयर जो टफ है, फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, along with the supported by means of a collagen fiber. Collagen is a tough protein, so protein fibers, and therefore here such outermost layer is a tough layer, fibrous layer made up of fibroelastic connective tissue along with the collagen fibers. Now here such outermost layer, which is called as the sclerotic layer or the sclera, sclerotic layer or the sclera. Now when we observe, it is ultimately that circular part, outermost region, sclerotic layer. 3/4 portion जो पीछे वाला है, जो buried region है, उस region में, इस sclerotic layer में sufficient blood supply है. It is a vascular region near about posterior 3/4 portion. लेकिन जो एक्सपोजिंग पार्ट है, फ्रंटल रीजन है, जो एक्सपोज हो रहा है, हम सामने से देख सकते हैं. Now here that exposing region, there is a one fourth region, okay, that is bulges forward, जो bulge हो गया, bulges forward, and such bulging region, it is now transparent, while the 3/4 region is an entire opaque portion. Opaque region, 3/4 region जो buried है, फिक्स हुआ है ऑर्बिट में, वो कैसा है, ओपेक है. लेकिन जो सामने एक्सपोजिंग पार्ट है, 1/4 पोर्शन जो है, दैट 1/4 bulging portion, exposing portion, it is ultimately bulges forward and it is entirely transparent and completely non-vascular. ट्रांसपेरेंट इसके लिए कि इसके थ्रू लाइट रेज पेनिट्रेट कर सकते हैं, पास हो सकते हैं, और जब भी लाइट रेज पास होगी इसके थ्रू तो ही इमेज बनेगी. तो अल्टीमेटली सच ट्रांसपेरेंट पोर्शन which is ultimately forward region, bulging portion, exposing part of the sclerotic layer, outermost sclerotic layer, it is called as the cornea. तो इसका फंक्शन क्या है, white made transparent, it allow the entry of that visible light. किसकी एंट्री को अलाउ करता है, विजिबल लाइट. अभी ये रीजन, that is a cornea, it is the only exposing part, cornea region, which can be called as the white portion of the eye, that is the cornea, which is a forward portion of the sclerotic layer. समझना है, outermost sclerotic layer है, टफ है, फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से बनी हुई है, जिसकी वजह से प्रॉपर आईबॉल का शेप मेंटेन होता है. उसका 3/4 पोर्शन आई सॉकेट्स में, ऑर्बिट्स में बरीड है. सिंपली 1/4 पोर्शन जो एक्सपोजिंग पार्ट है वही बल्ज हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो ट्रांसपेरेंट है, नॉन वैस्कुलर है. इट इज इंपॉर्टेंट, नॉन वैस्कुलर. एंड थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट नॉन वैस्कुलर रीजन of the sclera, now which is called as the cornea, which allow the entry of that visible light. उसके थ्रू visible light एंट्री कर सकता है. तो अगर ब्लाइंडनेस होता है तो मैक्सिमम केसेस में, एक्चुअली ब्लाइंडनेस में ये जो कॉर्निया पोर्शन है ये ओपेक हो जाता है, और कॉर्निया अगर ओपेक हो गया तो इसके थ्रू लाइट रेज पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, पास नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली इमेज नहीं बनेगी. इसलिए जब भी हम आई डोनेशन की बात करते हैं, तो एक्चुअली जब आई डोनेट करते हैं कोई पर्सन आफ्टर डेथ, ओके, उस समय एक्चुअली इसी कॉर्निया रीजन को ही डोनेट किया जाता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर दैट इज अ फिक्सेशन विच इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट, ट्रांसप्लांटेशन जिसको बोलते हो. ओके, ट्रांसप्लांट किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है. तो कौन सा रीजन, सिंपली कॉर्निया रीजन, वही ग्राफ्ट के लिए यूज होता है, ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि ये नॉन वैस्कुलर रीजन है. अगर नॉन वैस्कुलर रीजन है तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी वाला रिएक्शन नहीं होगा, ये ग्राफ्ट रिजेक्ट नहीं होगा. सो आई डोनेशन मींस एक्चुअली कौन सा रीजन डोनेट करते हैं हम, कॉर्निया रीजन डोनेट करते हैं. ओके,
जिसके द्वारा जिन पर्सन में ब्लाइंडनेस इस कॉर्निया की वजह से यानी इसके ओपेक होने की वजह से हुआ है वो करेक्ट हो जा सकता है। नाउ सच just above the cornea, again there is a thin transparent protective covering, thin transparent protective outermost thin, and that outermost thin protective covering which is called as the conjunctiva, again it is a thin and transparent conjunctiva. You know the अभी रेनी सीजन में स्पेशली रेडनेस हो जाता है आईज में, जिसको बोलते हैं हम आँख आना, डोळे आले, तो इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन टू द conjunctiva which is also called as conjunctivitis. Okay, so conjunctiva again it is a superficial protective covering, again it is a transparent covering over the cornea. Okay, also such entire surface of the conjunctiva it is regularly nourished and make it moist because of the regular secretion of the lacrimal glands, tear glands, जिसके द्वारा उसको रेगुलरली वॉश किया जाता है, स्मूथ और अल्टीमेटली लुब्रिकेंट रखा जाता है। नाउ अभी जो फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू लेयर मींस स्क्लेरोटिक लेयर है, इसका एक तो फंक्शन है कि वो आईबॉल का शेप मेंटेन करके रखता है, आउटर मोस्ट टॉप कवरिंग है तो अल्टीमेटली इनर कंटेंट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। Third important function, again it provides the surface area for the attachment of the eyeball muscles. Eyeball muscle, 3 pairs of the eyeball muscle, जिनके द्वारा rotation of the eyes, upward, downward and lateral movement ये सब रेगुलेट किया जाता है। तो eyeball muscles को अटैचमेंट के लिए कौन सर्फेस प्रोवाइड करता है? Sclerotic layer, which is simply called as sclera. तो in this way, outermost top covering that is sclerotic layer समझना है प्रॉपर तरीके से, वन बाय वन लेयर। ओके, आउटरमोस्ट टॉप कवरिंग स्क्लेरोटिक लेयर जिसका 3/4 पोर्शन कैसा है? बरीड है, 1/4 पोर्शन ही एक्सपोजिंग पार्ट है। ओके, जो पीछे बरीड पोर्शन है वो टफ है, ओपेक है, हाईली वेस्कुलर है। ओके, लेकिन 1/4 पोर्शन जो बल्ज होता है फॉरवर्ड, इट शुड बी बल्जिंग, and that bulging portion ultimately, that bulge of the sclera, now it is called as the cornea, and it is a transparent and non-vascular without blood supply. So it is used for a transplantation, that is eye donation जिसको हम बोलते हैं। Okay, to correct the blindness, and such transparent covering, transparent bulging portion of the sclerotic layer which is now called as the cornea, again covered by means of a transparent thin protective covering that is called as the conjunctiva. Okay, it is about the outermost layer that is the sclerotic layer which is simply called as sclera. तो जो एक्सपोजिंग व्हाइट पोर्शन है हमारे आईज का वो एक्चुअली कौन सा है? कॉर्निया। अब हम चलते हैं सेकंड लेयर पर which is inner outer portion means sclerotic, उसके नीचे now just below this sclerotic layer again another layer, that is second layer, which is called as the choroid, which is also called uvea, choroid or the uvea. This choroid or the uvea again in a ring, that is a posterior 3/4 portion, it is a continuous layer which is highly pigmented, and here that highly pigmented layer which again the vascular, okay, and it is a darkly pigmented containing a lot of quantity of the melanin pigments, and such because of the such dark pigmented body it prevent the scattering of light. जब लाइट आएगा it falls on the inner surface of that eyeball, तो उसका स्कैटरिंग नहीं होगा within that eyeball, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा, प्रॉपर इमेज क्रिएट होगी। तो स्कैटरिंग को प्रिवेंट करने के लिए दैट इज नथिंग बट हम बोल सकते हैं हमारा जो कैमरा होता है उसका जो इनर बॉक्स होता है इट इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये ब्लैक बॉडी क्या करता है? स्कैटरिंग अलाउ नहीं करता, लाइट रेस का रिफ्लेक्शन अलाउ नहीं करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो इन दिस वे दैट choroid layer which is highly pigmented layer it prevents the reflection of light within that eyeball ताकि image properly develop हो जाए। Now here in a posterior 3/4 portion
जो बरीड रीजन है उसमें वो कंटिन्यूअस लेयर है, लेकिन जैसे ही जहां से एक्चुअली कॉर्निया स्टार्ट होता है, नाउ दिस कोरॉइड लेयर comes forward and downward and projecting as a now circular structure, projecting as a flap, upward and the downward flap, means it is discontinue here and forming the hole. ये हम side view anatomical structure देख रहे हैं, that is the front view. Okay, so here that continuation of the second layer, that is the choroid layer or the uvea, okay, comes forward developing the flaps, and here in between these two flaps there is a small hole. Now these flaps are called as the iris. Flaps को हम क्या बोलते हैं? Iris, which is a continuation of the which layer? That is a choroid layer, called as the iris. And this small hole किसके लिए दिया गया? It is for the entry of the light. That small hole is nothing but the actual pupil, जिसके थ्रू लाइट जाएगा और कहां पर आएगा? वो लेंस पर, और फिर लेंस से कलेक्ट होकर एक इमेज बनाएगा ऑन द थर्ड लेयर, दैट इज नथिंग बट द रेटिना. तो इन दिस वे दैट कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरॉइड लेयर एज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, बट इट इज सर्कुलर एक्चुअली. अगर हम फ्रंट व्यू में देखते हैं तो कैसा है वो? सम कंप्लीट सर्कुलर. ये साइड व्यू है, सेक्शन है. तो अल्टीमेटली अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड दिस फ्लैप्स और द कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरॉइड लेयर, नाउ इट इज कॉल्ड एज आइरिस, and which shows a small aperture, and this aperture for the entry of the light now called as the pupil. Okay, now such iris, when we observe the frontal view of the iris, in this iris we can observe the two different type of the muscles. इसका मतलब जब कोरॉइड लेयर प्रोजेक्ट कर रही है, आइरिस बना रही है, तो कैसे हो गई? भी मस्कुलर हो गई, पिगमेंटेड भी है और मस्कुलर. तो उस आइरिस में रहने वाले एक्चुअल जो पिगमेंट्स है वही हमारे आई कलर को डिसाइड करते हैं. हम बोलते हैं नीली आंखें हैं, ब्राउनिश है, ब्लैकिश है, ग्रेइश है. ओके, गॉट इट? दिस आई कलर, इट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन द आइरिस. नाउ हियर in this iris actually there are the two types of the muscles. One is nothing but the radial muscles and another is nothing but the circular muscles. Okay, circular muscles. अगर ये सर्कुलर मसल्स अगर एक कांटेक्ट होगी, ओके, गॉट इट? सर्कुलर मसल अगर क्या होगी? कांटेक्ट होगी, तो क्या होगा? दैट एंटायर एपर्चर नथिंग बट द प्यूपिल, इट क्लोज डाउन, बहुत ही कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा. अगर सर्कुलर मसल क्या होगी? कांटेक्ट होगी, तो अल्टीमेटली दैट प्यूपिल रीजन कंस्ट्रिक्टेड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द circular muscles of the iris. Okay, अभी हम आंखें ऐसे बहुत छोटी कब कर लेते हैं? एकदम से अगर ब्राइट लाइट में चले जाएंगे, ब्राइट लाइट में, तो अल्टीमेटली हम क्या कर देंगे? हमारे आंखें छोटे कर देंगे. इसका मतलब क्या होगा? सर्कुलर मसल्स क्या हो गए? कांटेक्ट हो गए, और जो एपर्चर है प्यूपिल का, प्यूपिल एपर्चर है, उसको छोटा कर दिया जाएगा ताकि बहुत कम क्वांटिटी में लाइट रेज एंट्री कर सके. Got it? Now here it is contraction in a bright light and constriction of that pupil occurs, which is called meiosis. That constriction of the pupil is called as the meiosis, and allow only the small amount of light to enter. लेकिन हम अगर इसका उल्टा, अगर कोई अंधेरे रूम में जब चलाएंगे तो आंखें फाड़ के देखेंगे, अंधेरे रूम में जाते ताकि मैक्सिमम लाइट आना चाहिए, हमको दिखना चाहिए, इसका मतलब लाइट आना चाहिए. तो उस समय कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे? रेडियल मसल्स. नाउ दे कॉन्ट्रैक्ट मच मोर एंड अल्टीमेटली कॉजिंग द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल. इस प्यूपिल को होल को बड़ा कर देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा. तो रेडियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? डायलेशन होगा. सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? कंस्ट्रिक्शन होगा. Constriction of pupil in a bright light, which is called as the meiosis, while the dilation of that pupil, it is called as the mydriasis, and it occurs in a which light? Dim light, अंधेरे में होगा. तो in this way हमने outer most sclerotic layer स्टडी की. सेकंड इज द कोरॉइड लेयर और उसका एक्सटेंशन फॉरवर्ड. ओके,
दैट इज नथिंग बट द आइरिस, एंड देन द स्मॉल एपर्चर दैट इज द प्यूपिल। इस प्यूपिल के एग्जैक्टली पीछे कौन है? लेंस। नाउ सी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, where the choroid layer, second layer, pigmented layer, and then the iris जहां से arise होता है, which is a continuation of that choroid layer, वहीं पर एक मस्कुलर इपिथेलियोमस्कुलर दो पार्ट बोला मैंने, इपिथेलियल भी है और मस्कुलर भी है, that projection is developed and that epitheliomuscular projection is called as the ciliary body. Now such epitheliomuscular projection, that is the ciliary body, it is again one of the important part. उसके इपिथेलियम क्या करते हैं और मसल्स क्या करते हैं? उसके इपिथेलियम सिक्रीट करते हैं वाटरी फ्लूइड जो फिलअप करता है चेंबर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस। जो चेंबर है कंप्लीट स्पेस है लेंस के आगे, एंड दैट वाटरी फ्लूइड इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। एंड नाउ हियर एंड मेंटेन दैट चेंबर स्पेस। अगर ये एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन अगर ज्यादा हुआ है तो अल्टीमेटली बल्जिंग ज्यादा होगा, फॉरवर्ड बल्जिंग ज्यादा होगा। ओके, ग्लूकोमा उसको बोला जाता है। नाउ हियर तो हम डिसीज के बारे में यहां पर नहीं देखेंगे। देख, ये हुआ एपिथेलियम का पार्ट। मस्कुलर काम कौन सा करता है? मस्कुलरिटी उसकी क्या है? तो इन मसल से, सिलियरी बॉडी के मसल से फिर से फाइबर्स अराइज हुए, muscle projections arise which are called as suspensory ligaments, and by means of these suspensory ligaments the lens held in a proper position, लेंस को एक अपने प्रॉपर पोजीशन पर पकड़ के रखा हुआ है, साथ में इस लेंस का कॉन्वेक्सिटी मेंटेन किया जाता है। अगर ये लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स अगर स्ट्रेच हो गए तो लेंस कैसा होगा? थिन हो जाएगा, उसकी कॉन्वेक्सिटी कम हो जाएगी। अगर लूज हो गए, रिलैक्स हो गए तो लेंस की कॉन्वेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, एज पर रिक्वायरमेंट, उसी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी किया आउटर मोस्ट क्लेरोटिक लेयर, उसका फंक्शन, सेकंड इज द कोरॉइड लेयर, उसका फॉरवर्ड प्रोजेक्शन नथिंग बट द आइरिस, स्मॉल होल दैट इज द एपर्चर फॉर द एंट्री और द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट दैट इज नथिंग बट द प्यूपिल, एट द जंक्शन ऑफ दैट अल्टीमेटली कोरॉइड लेयर एंड द आइरिस राइजिंग द इपिथेलियोमस्कुलर स्ट्रक्चर नथिंग बट द सिलियरी बॉडी, इसके इपिथेलियम का फंक्शन और अल्टीमेटली मस्कुलर का फंक्शन दोनों। ओके, अभी थर्ड लेयर जो है नथिंग बट दिस थर्ड लेयर, जिसका काम कौन सा है? कन्वर्शन ऑफ दैट लाइट और द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द विजिबल लाइट इनटू द नर्व impulse generating, means that layer which is responsible for the visual perception nothing but the retina in the next video. Okay.